All right, let's pray and then we will get started. चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। Father, we just thank you for this day. पिता हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए Thank you for everyone who is present here. और प्रत्येक जन के लिए आप इसका धन्यवाद करते हैं Thank you for those who connected us online. और जो आप जुड़े हैं उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Father, we just pray that you will give us eyes that can see, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके सब देखने पाए plus ears that can hear, तो आंखें जो सुनने पाए hearts that can understand. और वो मन जो स्थापन पाए We ask for the empowerment of your Holy Spirit. We ask for your grace upon our lives. और आपके अनुग्रह के लिए हमारे जीवन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you धन्यवाद for all that you do today. जो भी आप करेंगे आज In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. All right, so let's go to lesson number 8, please. आइए अब हम सब अध्याय 8 में कृपया जाएंगे। We are learning how to study, how to interpret scripture. और हम सीख रहे हैं कैसे बाइबल का वचन का हम अध्ययन करें और उसका अर्थ या व्याख्या करें। And in lesson number 8, we speak about types and shadows. और हम अध्याय 8 में हम लोगों ने पूर्वाभास करने को सीखा जो छाया होता है उसका। All right, so I'll just quickly review the main point. जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बहुत जल्दी से साझा करूंगा। What we see in the Bible जो हम बाइबल में देख पाते हैं is that in the Old Testament, God has placed what we can refer to as shadows. और पुराने नियम में परमेश्वर ने उस बातों को रखा है जिसको हम सादृश्य या छाया कह सकते हैं। The shadow is pointing to the reality or the type in और the New Testament. और नए नियम में वह छाया या सादृश्य है उसकी वास्तविकता या पूर्णता होती है नए नियम में। So the shadow gives us some resemblance, some understanding or idea about the truth, the reality that's coming up. और जो सादृश्य छाया होता है वह हमें कुछ समानता, कुछ सच्चाई, कुछ वास्तविकता बताती है जो आने वाली है। It is helping people know that there is something coming. और यह लोगों को यह जानने देती है कि कुछ अभी आ रहा है सामने। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में we see the reality, हम वास्तविकता को the देखते हैं, type, उस प्रकार को देखते हैं, the fulfillment उस पूर्णता को देखते हैं, of that shadow. उस छाया का, उस प्रतिबिंब का, उस प्रभाभास का। Right. So from the shadow, we can learn a few things about the reality or the type. और उस छाया के पूर्वाभास से हम सीख सकते हैं उस समय की वास्तविकता के बारे में। But the fullness, the full understanding is seen in the reality, in the type that comes in the New Testament. और जो पूरा जो वास्तविकता होता है वह पूर्वाभाषित होती है आने वाले समय में, जो प्रतीक होता है उस समय में। And these are given to us in scripture. We don't make them up. और इनको हमको धर्मशास्त्र में दिया गया है, इसको हम अपने आप नहीं बनाते। You know, we can't just read something in the Old Testament. Oh, the walls of Jericho represent, the gates of hell. तो हम ऐसा नहीं बना सकते कि जो यरीहो नगर का जो दीवार था वह नरक का दरवाजा है, ऐसा करके हम नहीं बना सकते। We can't make it up. उसको खुद ब खुद नहीं बना सकते। There has to be chapter and verse. और वहां पे कुछ अध्याय और वचन होने चाहिए उनको मिलने के लिए।
You with me? आप मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? So yesterday we saw some examples. We'll see some more today. कल हम लोगों ने कुछ उदाहरणों को देखा और कुछ आज भी देखेंगे। We mentioned about the Passover lamb और हम लोगों ने जो फसह का मेमना है In उसके the- बारे में मैंने सीखा in the Old Testament. पुराने नियम में। New Testament, नए नियम में New Testament says Jesus और is the Passover lamb. और नए नियम में कहता है यीशु वह फसह का मेमना है। In the Old Testament, पुराने नियम में we saw how Moses struck the rock और किस प्रकार मूसा ने चट्टान पर मारा and he spoke. God told him to speak to the rock second time. और दूसरी बार परमेश्वर ने उससे कहा कि तू चट्टान से बात कर। New Testament, the New Testament says that rock was Christ. और नए नियम कहता है कि वह चट्टान मसीह था। Right? So through that, God is giving us some understanding about how to relate to Jesus. और उसके जरिए प्रभु हमको कुछ समझ दे रहे हैं कि किस प्रकार उसमें उसका संबंध है। Now, at the bottom of page 25 in the English notes, और some examples. अंग्रेजी में 25वें पन्ने पर और हिंदी में 27वें पन्ने पर है। There are some examples of types and antitypes. और वहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं प्रकार के बारे में और रूपक के बारे में, अनुयोक्ति के बारे में। Okay. So, example, Melchizedek. जैसे कि मलकीसिदक, He's a shadow or a type in the Old Testament, a figure in the Old Testament. और यह पुराने नियम का एक छाया है। In the New Testament, नए नियम में Jesus is referred to as a priest after the same order of Melchizedek. और यीशु को भी उसी प्रकार देखा गया है, एक याजक की तरह, उसी क्रम में जिसको मलकीसिदक को देखा जाता था। In Hebrews chapter 7. इब्रानियों के अध्याय 7 में। Right? So it is pointing back. The New Testament is pointing back to the Old Testament. तो नया नियम पुराने नियम को संक्षेपित कर रहा है या चिन्हित कर रहा है। Right? So what can we learn about Melchizedek? तो हम मलकीसिदक के बारे में क्या सीख सकते हैं? There are at least two things we can say. दो तीन चीजें हम कह सकते हैं। First, पहला, in the Old Testament, Melchizedek, there is no information given to us about his beginning or ending. He just comes. और हम लोग मलकीसिदक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके शुरुआत और उसके अंत में कुछ नहीं, शुरुआत और अंत के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो बस अचानक आता है। So, like that, Jesus has no beginning, no ending. और इसी प्रकार यीशु का भी कोई भी शुरुआत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। Right? Second, दूसरा, Melchizedek is the king of Salem, king of peace. और मलकीसिदक जो है वह शांति का राजा है। Jesus is the prince of peace. और यीशु ही है वह शांति का राजकुमार, The true prince of peace. जो सच और सच्चाई वाला शांति का राजकुमार। Another thing we see in the Old Testament, और जो हम पुराने नियम में दूसरी बात जो हम देखते हैं, Abraham gave tithes to Melchizedek, और अब्राहम ने मलकीसिदक को दशमांश दिया and Melchizedek blessed him. और मलकीसिदक ने उसको आशीष किया। New Testament, नए नियम में Hebrews says, we who are descendants of Abraham, we give tithes, and Jesus receives that, and he blesses us. और नए नियम में हम पौलुस कहता है कि हम दशमांश देते हैं और यीशु उसको ग्रहण करते हैं और हमें आशीषित करते हैं। You understanding the parallel? आप जो समानता है उसको क्या आप समझ पा रहे हैं? Yeah? So we can learn some things about Jesus by looking at the shadow in the Old Testament. तो हम कुछ यीशु के बारे में सीख सकते हैं उस पूर्वाभास या छाया को देखकर जो यीशु के बारे में बताया गया है पुराने नियम में। Like this, there are other examples. और उसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। Aaron is a priest. और हारून एक याजक है। He has priestly ministry. और उसका एक याजकीय सेवकाई है।
he's the high priest. और वह उच्च याजक है। New Testament, नए नियम में Jesus is our high priest. यीशु हमारा सर्वोच्च याजक है, Just like Aaron in the Old Testament. हारून की तरह पुराने नियम में। So the feast of unleavened bread. जैसे अखमीरी रोटी का पर्व, So in the Old Testament, देखो पुराने नियम में God told his people परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, from the time of the day of the Passover for 7 days, they must eat unleavened bread. और उन्होंने कहा कि फसह के पर्व के 7 दिनों तक उनको अखमीरी रोटी खानी है। They must not keep any leaven in the house. उनको घर में कोई भी अखमीर नहीं रखना है। In the New Testament, पुराने नियम में the New Testament points back and says that is how we as believers must live all the time. और नए नियम में उस प्रकार बताया गया कि कैसे उसी प्रकार विश्वासी को रहना चाहिए हर एक समय, Not just 7 days, सिर्फ 7 दिन ही नहीं, but all the time. हर समय। Leaven represents sin. Keep it out of your house. जी, और अखमीर को एक पाप की तरह देखा जाता है, उसको आप अपने घर से बाहर रखें। You understand it? आप समझ रहे हैं? Yes? So the New Testament is pointing back and saying that's a shadow, a time. और इसी प्रकार जो नया नियम है वह दिखा रहा है या बता रहा है कि यह एक छाया या पूर्वाभास है। A second like the type and the type and shadows, another part, another use of Old Testament in the New Testament is illustrations. तो उसी प्रकार पूर्वाभास या छाया के समानता में एक और भाग है नए नियम और पुराने नियम को समझाने का, उसको कहते हैं व्याख्या करना। An illustration is we are saying that is like this. It is as, it is like this. Not representing the same. It is like this. तो जो व्याख्या करना का मतलब होता है, उसका मतलब जैसा वैसा नहीं, लेकिन उसके जैसा, उसकी समानता में उससे हम क्या सीख सकते हैं, So that's an illustration. तो उसको कहते हैं व्याख्या। This also is in the scriptures. ये भी वचन में है। For example, उदाहरण के रूप में Jesus said, as Jonah was in the belly of the fish for 3 days, even 3 days, 3 nights, even so the Son of Man will be in the belly of the earth. तो जिस प्रकार यीशु ने कहा था कि योना जो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी धरती के पेट में रहेगा 3 दिन और 3 रात। So he's just pointing to that. That is like an illustration. वह एक व्याख्या की तरह है। There is no direct comparison. वहां पे जो एकदम सीधी तुलना जो है वो नहीं है। We cannot say Jonah represents Jesus. हम ये नहीं कह सकते कि योना यीशु को दर्शाता है। The belly of the fish represents hell. और जो मछली का पेट है वह नरक को दिखाता है। No, it's only an illustration. ये सिर्फ व्याख्या करना, वर्णन करना। Whereas in the other case, the New Testament is saying Christ is our Passover. और कुछ ऐसे वचनों में लिखा है कि मसीह ही हमारा फसह का पर्व है। Christ is that rock. और मसीह ही वह चट्टान है। In an illustration, it's like Jonah was there, Christ will be in. और समझाने या व्याख्या करने में जैसा योना था मछली के पेट में, वैसे यीशु थे पृथ्वी के पेट में, अर्थ में। Another example of illustration is Jesus said, as Moses raised up the serpent in the brass serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be raised up. और धर्मशास्त्र भी कहता है जैसे कि मूसा ने पीतल के सांप को उठाया, उसी प्रकार मसीह भी उठाया जाएगा। So what happened in the Old Testament? तो पुराने नियम में क्या हुआ? There was a time when the people disobeyed God. एक समय था जहां पे लोगों ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। So serpents came and were biting the people and people were dying. और सांप आके लोगों को काटने लगे और लोग मरने लगे।
what did God tell Moses to do? तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा करने के लिए? He said, make a snake out of brass, और पीतल का एक सांप बनाओ, put it on a stick, उसको एक छड़ी पे रखो and you raise it up in the middle of the camp. और उस कैंप के मिडिल में, पड़ाव के मध्य में जाकर उसको तुम उठाओ. If a snake bites anybody, अगर कोई सांप किसी को काटता है, if they see that brass snake, अगर वह पीतल के उस सांप को देखेगा, they will be safe. They will be healed. वे चंगे हो जाएंगे, वे सुरक्षित रहेंगे. So so that's in the Old Testament. और यह पुराने नियम में है. In the New Testament, नए नियम में the Lord Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, he's speaking about himself. वह अपने बारे में बता रहे हैं. He says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be raised up. और यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे कि मूसा ने उस सांप को उठाया ऊंचे पर उस जंगल में, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाएगा. You understanding? आप So समझ there रहे is हैं? a illustration, तो यह समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए, which means that just like everybody who looked at the brass serpent, they were healed. Today, everybody who looks to Jesus, they will be saved and और healed. पहले जैसे लोग पीतल के सांप को जब देखते थे पुराने नियम में तो वे चंगे हो जाते थे, उसी प्रकार आज भी जब लोग यीशु को देखते हैं तो वे बचाए जाते हैं और उनको चंगाई मिलती है. Amen? आमीन. But now I have a question. अभी मेरे पास एक प्रश्न है. In the Bible, बाइबल में snake represents whom? सांप किसको दिखाता है? शैतान को, इब्लीस, शैतान को. Satan. But in this case, लेकिन इस क्षेत्र में, only in this case, सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में, that brass serpent, इस विषय में, वह पीतल का सांप, how can Jesus say, as Moses raised up the brass serpent, I will be raised up? What is the comparison here? Because snake represents Satan. देखिए, सांप दर्शाता है शैतान को, तो यहाँ पे क्या तुलना यीशु मसीह दे रहे हैं उस पीतल के सांप में और अपने में कि हम में उठाया जाएगा? How can we compare the two? हम कैसे उसको तुलना कर सकते हैं? Because snake represents Satan. क्योंकि सांप तो शैतान को दर्शाता है. But how can Jesus compare? It's because healing. Healing. Yeah. Healing is there. Correct. But my question is, Jesus was crucified. Satan was crucified. So he was crucified like that. And I don't know the space, but okay, how do we understand this? तो इसको कैसे समझे हम? Brass represents judgment. पीतल न्याय को दर्शाता है. So what happened on the cross? क्रूस पर क्या हुआ? Satan was judged. शैतान को क्या न्याय हुआ था? Satan was defeated. शैतान को हराया गया था. So in the Old Testament, पुराने नियम में when that serpent was raised up, it means this serpent has been judged. तो जब वो सांप को उठाया गया था, उसका मतलब है कि यह सांप का न्याय हुआ है, Defeated. वो हराया गया है. New Testament, नए नियम में when Jesus was raised up on the cross, जब यीशु को क्रूस पर उठाया गया, सांप को क्या हो गया? what happened to the snake? Satan was judged. शैतान का न्याय हुआ. Satan was judged on the cross. He was defeated on the cross. और क्रूस पर उस शैतान की हार हुई, उसको न्याय मिला. So that is the comparison. और यही वह तुलना है. You understand? आप समझ रहे हैं? That is why Jesus could say, just as Moses raised up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man will be raised up. और उसी प्रकार इसलिए यीशु ने कहा कि जिस प्रकार
मूसा ने उस सांप को उठाया ऊंचे पर, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाएगा। And then he said, if I be lifted up, I will draw all men to myself. और अगर कहता है कि अगर मुझे उठाया जाएगा तो मैं सारे मनुष्यों को मेरे पास उठा लूंगा। Because when he's lifted up, Satan is defeated on क्योंकि the जब cross. उसको उठाया गया है तो शैतान हारा गया है। आमीन। On the cross. क्रूस पर। So that brass serpent is representing Satan's judgment, और जो पीतल का सांप है वह द्योतक है शैतान के न्याय का, Satan's defeats. शैतान के हार का। Amen? आमीन। So, like this, and like this, we will see many illustrations, or we will see types and shadows where the New Testament is looking back into the Old Testament. और उसी प्रकार हम इस प्रकार के पूर्वाभास और छाया को देखेंगे जहां पे नया नियम पुरानी नियम के बातों का पूर्वाभास या उसका छायांकित करता है। But one thing we must not do, लेकिन एक चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए, which we will talk about in another lesson, और दूसरे पार्ट में जिसके बारे में हम बात करेंगे, we must not allegorize. और हमको किसी का अलंकार या रूपक नहीं देना है। In English we say allegorize, which means we are just imagining something. तो अंग्रेजी में कहते हैं अलग, इसका मतलब होता है कि हम कुछ कल्पना कर रहे हैं। And we are making the scriptures say something which was not originally intended. और हम ऐसा कुछ अपना बना रहे हैं जो असल में वह इच्छा नहीं था बोलने का, लेकिन हम खुद ब खुद उसको बना रहे हैं। That means we are assigning a meaning to the scriptures which is not in the Bible. इसका मतलब होता है कि हम अपने आप से कुछ मतलब को दे देते हैं उस बात को जो बाइबल में है ही नहीं। So example, जैसे उदाहरण के रूप में the walls of Jericho, यरीहो का दीवार, the 12 spies, I mean 2 or 3 spies, forget now. They went into Jericho दो तीन गुप्तचर थे वो यरीहो में गए, and Rahab, she kept them protected them in her house. और रेहाब जो थी उसने उसको रक्षा किया, सुरक्षा किया अपने घर में। And then she let them down outside the city wall with the rope. और रस्सी से उन्होंने जो शहर पनाह की जो दीवार थी उसके द्वारा उसको बाहर निकाला। And they told her, when we come to attack the city, you keep this red rope hanging from your house. और जब वो कहता था कि जब वो कहे कि जब मैं इस शहर पे आक्रमण करने आऊंगा तो यह लाल रस्सी का जो रस्सी है उसको अपने दीवार से अपने घर से लटका के रखना, and you will be preserved, your family will be preserved. और तुम और तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा। So they told that. ये उसने कहा ऐसा। Suppose somebody is preaching. लेकिन मान लीजिए अगर कोई प्रचार कर रहा है, The city of Jericho represents the nations of the earth. और जो शहर है यरीहो का वह इस सारे राष्ट्र का, देश का राष्ट्र है, And the spies represent Jesus. He came into this world. और जो गुप्तचर है वह यीशु को दर्शाता है जो इस पृथ्वी पर आया, Those who received him. जो उनको ग्रहण करते हैं। And this red rope represents the blood of Jesus applied to their house. और जैसे वो लाल रस्सी है वह यीशु का लहू है जिसको उसके घर में लगाया गया था। Then when God is judging this world, और जब इस संसार को परमेश्वर जब न्याय करते हैं, like how the walls of the city of Jericho came down, और जैसे कि यरीहो की दीवार जब गिर गई, if you have the red blood of Jesus on your hearts, और आपके हृदय में, अपने घर में अगर आपके पास वो लाल लहू जो रहेगा यीशु का, then you will be saved. तब तुमको बचाया जाएगा। Is that correct message or not? क्या यह सही संदेश है या नहीं? Is that correct interpretation of scripture? क्या धर्मशास्त्र का सही अर्थ निकालना हुआ वो? No, it's not correct. नहीं, ये सही नहीं है, Because क्योंकि that is only a story. यह सिर्फ एक कहानी है। Yes, we can learn some important things from that incident. उस घटना से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हाँ हम सीख सकते हैं, But nowhere in the Bible लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं does it say Jericho represents the world. जेरिको संसार को दर्शाता है, नहीं कहता है। That the red rope is the blood of Jesus. और जो लाल रस्सी है वो यीशु का लहू है, नहीं The दर्शाता। spies who came, they represent Jesus और himself. जो गुप्तचर आए वह यीशु को दर्शाता है, ऐसा नहीं है। The
The collapsing of the walls represent judgment of the earth. और दीवारों का ढह जाना वह पृथ्वी का न्याय को दर्शाता है, ऐसा नहीं है। That is not given in the Bible. यह बाइबल में ऐसा नहीं दिया गया है। So when we say something like that, जब हम इस प्रकार के कुछ बातों को ऐसा कहते हैं we are allegorizing. तो हम क्या करते हैं, हम अलंकार देते हैं, रूपक देते हैं। We are giving a meaning to the text that was not intended. हम उस वचन का इस प्रकार मतलब निकालते हैं जिसकी इच्छा नहीं थी, वह इच्छित नहीं था। Even though there may be nothing wrong in what we are saying as a message, हो सकता है कि जो हम संदेश दे रहे हैं उसमें कुछ गलत ना हो, फिर भी it is true that the world will be judged. Jesus came into this world. His blood protects us. All those things are true. जैसे यीशु इस संसार में आए, उसके लहू ने संसार को बचाया, ये सारी बातें सत्य हैं। But the use of that text is not correct. लेकिन जो भाग है उस वचन का वह सही नहीं। We're not using the scriptures correctly. तो हम जो धर्मशास्त्र को अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। You understand it? आप समझ रहे हैं? So we must not do that. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। Okay? Take the scripture, explain it correctly. आप धर्मशास्त्र को लीजिए और सही रीति से उसको समझाइए। Let's go to lesson number 9. आइए अध्याय 9 में जाएंगे। Parables. दृष्टांत। Parables are an interesting way to communicate truth. और जो दृष्टांत है वह बहुत अच्छा तरीका है सच्चाई को बताने के लिए। So when the Lord Jesus, when he was in his earthly ministry, और जब यीशु मसीह अपने धरती के इस संसार के सेवकाई में थे, he spoke in parables. उन्होंने दृष्टांतों में बातें की। So what are parables? सो दृष्टांत क्या होते हैं? Parables are stories from our world that contain spiritual truth. तो दृष्टांत है वे कहानियां हैं इस संसार की जिसमें आत्मिक सच्चाई होती है। That means spiritual truth is hidden inside the story. इसका मतलब होता है कि आत्मिक सच्चाई वह कहानी में छिपी हुई है। But लेकिन we have to correctly understand and interpret the parable to receive that truth. और हमको बहुत सही रीति से उस कहानी का या दृष्टांत का अर्थ निकालना है जो सच्चाई को बताता है। And we must not misunderstand or misinterpret the parable. हम उसका गलत अर्थ ना निकालें या उसमें कुछ गलत फहमी ना रखें। Let us talk about a few parables or illustrations that Jesus used. आइए कुछ व्याख्याओं को, कुछ उदाहरणों को जो यीशु ने उपयोग किए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। We discussed the parable of the sower हम लोगों ने बीज बोने वाले के दृष्टांत को पहले बात किया था उसके ऊपर, on the very first day. सबसे पहले दिन। Very interesting. Jesus said, और ये बहुत दिलचस्प वाली बात है कि यीशु ने कहा, he said, if you understand this parable, you will understand all parables. तो उसने कहा कि अगर तुम इस दृष्टांत को समझ जाते हो तो सारे दृष्टांत को समझ जाओगे। He said that. उसने उसे कहा था। Why? Because क्यों? if you know how to interpret and understand this one parable, you do the same thing for all the other parables. You can understand them. तो अगर जब जान जाते हैं कि किस प्रकार इस दृष्टांत का अर्थ या मतलब निकालना है और उसका व्याख्या करना है, तो आप सारे दृष्टांत को आप समझ जाएंगे, उसका अर्थ और मतलब निकाल पाएंगे। So Jesus gave us the parable of the sower and he explained it to us so that we can follow the same way of understanding and interpreting parables. तो यीशु ने हमें बीज बोने वाले का जो दृष्टांत दिया और उसी प्रकार उसका अर्थ बताने का हमको सिखाया, तो हम अन्य दृष्टांत है उसको भी हम उसी प्रकार सीख सकते हैं और जान सकते हैं। Who can quickly summarize parable of the sower? बीज बोने वाले के जो दृष्टांत है उसको कौन जल्दी से संक्षिप्त रूप में बता सकता है, सारांश बता सकता है? कोई एक जल्दी से, Quickly. जल्दी से। Mike, जी, लीजिए, please. या प्लीज टेक योर माइक। चार बातें हैं, उसको आपको यहाँ पे सामने माइक है आपके। Come. जी बताइए। Go ahead. सारांश, उस बीज बोने वाले के दृष्टांत का सारांश। पहला बीज मार्गों के किनारे गिरा,
ओके, दूसरा बीज पथरीली भूमि पर, तीसरा झाड़ियों के बीच में, और चौथा अच्छी भूमि पर गिरे। मतलब और ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहला जो सड़क के किनारे गिरा वो संसार या शैतान को दर्शाता है, मतलब वो चुरा लेता है। जो मनुष्य ग्रहण तो करते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से वो विश्वास से भटक जाते हैं। दूसरा जो पथरीली भूमि पर है वो घर परिवार की चिंता है जो मनुष्य को दाब देती है, बढ़ने नहीं देती। तीसरा वो पथरीली झाड़ी हाँ। झाड़ी जो मनुष्य के आगे तो बढ़ते हैं लेकिन किसी ना बहुत से ऐसे गांव समाज रिश्तेदार पड़ोसी लोग उनको दबाव डालते हैं, तू मसीह को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है, तो उस कारण से वो मसीह को छोड़ देता है। और चौथा वो है जो अच्छी बीज जो अच्छे भूमि पर गिरी, जो मनुष्य सुनकर आनंद के साथ ग्रहण करते हैं और उस परमेश्वर की भी चलने का निर्णय लेकर और पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। और चौथे वो अच्छे बीज मतलब वो परमेश्वर में फलवंत होते हैं या जयवंत हो जाते हैं। Correct? Okay. Right. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah. So the spiritual truth is hidden inside that parable or illustration. तो आत्मिक सच्चाई है वह छिपी हुई है उस व्याख्या में, उस दृष्टांत में। Jesus said the seed is the word of God. यीशु ने कहा कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। So God's word is like seed. तो परमेश्वर का वचन है वह एक बीज की तरह है, It has to be put into our hearts. उसको अपने मनों में रखना जरूरी है, Only then it will produce. तभी जाके वह फल लाएगी। But the condition of our heart is very important. तो हमारे जो हृदय की अवस्था है ना वो बहुत जरूरी है। The devil wants to take away the word because he knows it's the word that will produce in our lives. तो जो शैतान है वो जानता है और कि वह बीज फल लाएगा, इसलिए उसको वह हटाना चाहता है, चुराना चाहता है। But if we understand the word लेकिन अगर हम वचन को समझ जाते हैं and we don't give up on the word when there is persecutions or hardships, और जब कठिनाई या सताव होती है तो अगर हम उस वचन पर अपना हार नहीं मानते हैं and we protect our heart from the cares of this world, और अगर अपने हृदय को जब हम सुरक्षित रखते हैं इस संसार की चिंताओं से the deceitfulness of riches, और धन के धोखे से the desire for other things, और अन्य बातों के लोभ से, and we keep that word, और उस वचन को जो अगर हम बनाकर मान कर रखते हैं then we will bring forth fruit with patience. तब जाके हम धीरज से फल को लाते हैं। So that is the spiritual truth. That is the spiritual truth तो वही है आत्मिक सच्चाई that he wants us to receive from this parable. कि वह चाहता है कि हम इस दृष्टांत से उसको हम सीख पाएं। Right? ठीक है। So when interpreting parables, तो जब हम दृष्टांतों का जब हम अर्थ निकालते हैं we must not let me say, we must not all right. We must only take those things that are intended for us to give us the meaning. तो हम जब दृष्टांत को जब देखते हैं, अब उसको पढ़ते हैं तो हमको उसी बात को लेना है जो बताने की इच्छा रखता है, वो जो इंटेंट किया है, जिसका मतलब जो हमको बताने के लिए रखता है उसको ही लेना चाहिए। Don't go into all the unnecessary details to try and find meaning to those things. और अनावश्यक बातों का मतलब निकालने के लिए जो किसका मायने रखता है उसको बारे में आप मत सोचिए। For example, in the parable of the sower, उदाहरण के रूप में जैसे कि बीज वाले बोने के दृष्टांत में suppose somebody says अगर कोई कहता है there are 4 kinds of seeds: 4 प्रकार के बीज है, mango seed, आम का बीज, tamarind seed, इमली का बीज, tomato seed, टमाटर का बीज, mustard seed. सरसों का बीज। Because Jesus said there are 4 kinds of soil. क्योंकि यीशु ने कहा 4 प्रकार के मिट्टी है, So there are 4 kinds of seeds. तो फिर 4 प्रकार का बीज भी है। And there are 4 kinds of believers. और 4 प्रकार के विश्वासी भी होते हैं। One believer is like the roadway.
और एक जो pathway. Yeah. जी एक जो विश्वासी वह सड़क की तरह है, Another believer is like the stony ground. और एक विश्वासी जो है वह पथली भूमि है। Another believer is like the bush. जी दूसरा विश्वासी एक झाड़ी की तरह है, And there are some believers who are good. और कुछ ऐसे विश्वासी है जो अच्छे हैं। So if we start making up all these kinds of things, अगर हम ऐसे शुरुआत कर देते हैं कि ये सारे प्रकार के मतलब को निकालना जो शुरू करते हैं, is it correct? क्या ये सही है? No, नहीं, because we are taking that parable and adding and doing all kinds of things with that parable which Jesus never intended for us. और हम उस दृष्टांत को लेते हैं और उसको फिर तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, इस प्रकार की बातों को करते हैं जो यीशु कभी नहीं इच्छा रखते थे कि उसका मतलब ये होना चाहिए। Then somebody will say, God gave me a revelation. और कोई कहेगा कि परमेश्वर ने मुझे वह There प्रकाशन are दिया। 4 kinds of birds that will come to steal the seed. 4 प्रकार के पक्षी होते हैं जो आएंगे उस बीज को चुराने के लिए। One is vultures, एक गिद्ध होगा, 2 is crows, एक कौवा होगा, then pigeons, और एक कबूतर होगा, and then some parrots. और कोई तोता होगा। There will be 4 kinds of birds that will come. 4 प्रकार के पक्षियां होंगे जो आएंगे। So who told you? तो आपको कौन बताया? Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। Correct? सही है? गलत है? जी, Jesus never said those things. यीशु ने कभी भी ऐसे बातों को नहीं कहा, And he does not want us to do that with this parable. और वो नहीं चाहता कि इस दृष्टांत से हम वैसा उसके साथ करें। Right? Just keep it as it is. जैसा है वैसा रहने दीजिए, Take the meaning out of the parable. That's what we want to get. और उस दृष्टांत से जो मतलब जो अर्थ है उसको निकाल के आप लीजिए, वही जरूरी है। You understand? आप So समझ रहे हैं? don't read too much into the story in the parable. बहुत ज्यादा उस कहानी को जो दृष्टांत में लिखा गया है उसको आप मत पढ़िए। For example, उदाहरण के रूप में Jesus gave another parable in about the 10 virgins. और 10 कुंवारियों के बारे में यीशु ने एक दृष्टांत कहा। Let's go there. आइए वहां जाएंगे। I think it's in Matthew chapter 26, 5 or 6. Yeah. मत्ती के अध्याय 25 25. 25 में Let us read verses 1 to 13, please. आइए हम पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर 13 तक। So, just to give us some background, कुछ पृष्ठभूमि देने के लिए, भूमिका को देने के लिए, in Matthew chapter 24, मत्ती 24 में just before speaking about this parable, इस दृष्टांत को कहने से पहले Jesus has been speaking about the end times. यीशु अंत के दिनों के बारे में, समय के बारे में बात कर रहे हैं। And he has been teaching his disciples how to be ready for the coming of the Lord. और परमेश्वर के आने के लिए वे कैसे तैयार रहें So वो सिखा रहे हैं। that is what he's been talking. और वही बात ये कह रहे हैं यहाँ पर। While he's talking about that, और जब वह उस बारे में बात कर रहे he हैं gives this parable. और यह इस दृष्टांत को देते हैं। So we must understand the parable in the context of what he is talking. तो हमको उस दृष्टांत को समझना जरूरी है उस संदर्भ में जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। How to be ready for the coming of the Lord. कैसे हम तैयार हो उस परमेश्वर के आगमन के लिए। So let us read. आइए हम पढ़ेंगे। Somebody can read verse 1 to 13, कोई please. पढ़ सकता है क्या 1 से लेकर 13 तक? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो,
भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं, और द्वार बंद कर किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। All right. How do we understand this parable? तो हम इस दृष्टांत को कैसे समझते हैं? First question we must ask, पहला प्रश्न जो हमें अपने आप को पूछना चाहिए, what is the context? यह संदर्भ क्या है? What was he talking about? वह किसके बारे में बात कर रहा था? What was he talking about? किसके बारे में? He's been talking about his coming, वह उसके आगमन के बारे में बात कर रहा है, right? That is the context. That is chapter 24. वही In chapter संदर्भ है। 24, he's been talking about his coming, his return. और यह अध्याय 24 में वहां अपने आगमन के बारे में बता रहे हैं। Second question we must ask is, दूसरा प्रश्न हमको यह जरूर पूछना है कि what is the main thing that he's trying to tell us through this parable? What's the main thing? और जो मुख्य बात इस दृष्टांत के जरिए वो कहना चाहते हैं वो क्या है? To be ready, कि हम तैयार रहे। right? That is what he said in verse 13. देखिए 13 वचन में उसने यही कहा, So he said, this is the main thing. और इसने कहा कि यह मुख्य बात है। Watch, because you do not know when the Son of Man is coming. जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब मनुष्य का पुत्र आएगा। You don't know. नहीं जानते, So always be ready. हमेशा तैयार रहना है। Now, in order to do that, और उसको करने के लिए he used an illustration from their day and time. और वह उन दिनों के बातों को लेकर, समय को लेकर उसने व्याख्या किया। We don't do this today. आज इसको हम नहीं करते हैं। So for us, हमारे लिए we don't immediately understand the story. हम बहुत ही तुरंत इस कहानी को नहीं समझ पाते हैं, But लेकिन for the people then, वहां के लोगों के लिए this story had a lot of meaning. यह कहानी का बहुत सारा अर्थ था। So we must do a little bit of study, a little bit of research और हमको जरूरी है कि हम कुछ खोज करें, जांच करें, to try to understand how were weddings being done in those days. तो हमको यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार विवाह किए होते थे उस दौरान, उस समयों में। So in New Testament times, नए नियम के दौरान this is how weddings would happen. इस प्रकार से विवाह होते थे। If a man wanted to marry a woman, और एक पुरुष जब एक स्त्री से विवाह करना चाहता था, the families would meet परिवार को मिलना चाहिए, and they will have a betrothal or an engagement. और फिर वहां पर सगाई की रस्म होती है। Now, I'm not saying we have to do the same thing. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको भी ऐसा ही करना है। I'm not saying we don't practice this. हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं। I'm just saying we must understand their culture, हम ये कह रहे हैं कि हमको जरूर है कि उनके संस्कृति को समझे, because this story is given as per how they used to do things then. और यह कहानी दिया गया है उस बातों को लेकर जो उस समय वो करते थे। So the groom is engaged to the bride. और जो दूल्हा दुल्हन के साथ उसकी सगाई होती है, Then he will go away और वे चले जाते हैं for 1 year. 1 साल के लिए। Why? क्यों? It is the responsibility of the groom to get everything ready. तो यह जिम्मेदारी था उस दूल्हे का कि वह सारी बातों को तैयार रखे, So make sure he has a house. और वह निश्चित करता है कि उसका घर है एक, Whatever is needed, he gets everything ready for about जो 1 year. 1 साल के अंतर्गत जो भी उसको जरूरत है वो सब कुछ तैयार रखता है। No, he doesn't get engaged one day, next day married, शादी हो गया सब. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन उसने मंगनी की और अगले दिन ही शादी कर लिया, सब हो गया, ऐसा नहीं। You get engaged, आप जब मंगनी करते हैं then he'll go to prepare. तो आप तैयार होने जाते हैं। So that's why, when Joseph was engaged to be married to Mary, और जब यूसुफ को जब उसकी सगाई हुई मरियम से विवाह करने के लिए, but they were not married yet. वे अभी विवाहित नहीं हुए थे,
Joseph was getting everything ready. यूसुफ सब कुछ तैयार कर रहा था। That time God sent the angel to Mary. उस समय परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा मरियम के पास। Jesus also said, यीशु ने भी कहा, in my father's house मेरे पिता के घर में are many mansions. बहुत सारे महल हैं, I'm going to prepare a place for you. मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। When it's all ready, जब सब कुछ तैयार हो I will जाएगा come to receive. मैं तुम्हें लेने आऊंगा। See, that is how they used to do it in those days. और देखिए इसी प्रकार उन दिनों में वे इस कामों को किया करते थे। So, another reason is it would be at least more than 9 months because it is also proof that this lady is a virgin. और हो सकता है कि ये 9 महीने से ज्यादा हो गया हो लगभग, क्योंकि यह साबित होता है कि यह जो स्त्री है यह अभी कुंवारी है। You understand? Both ways. दोनों तरफ से They engage, वे उनकी सगाई हो चुकी है, the groom goes to prepare the place, get everything ready, house, money, everything. दूल्हा जाता है सब कुछ तैयार करने के लिए, घर पैसे सब कुछ तैयार करने के लिए। Meantime, उसी समय the bride is also preparing herself and she is showing that she is a virgin and she is committed to marrying this man. और जो दुल्हन है वो भी दिखा रही है कि वह समर्पित है उस व्यक्ति के साथ, उस पुरुष के साथ, और वो कुंवारी है। Then the bridegroom will come और फिर वो दूल्हा आता है and he will receive all the people who are going to be part of the wedding party. और उस विवाह के समारोह का जितने भी मेहमान आएंगे उन सबों को वह ग्रहण करता है। And then the wedding will happen. It will take place over 7 days usually. और 7 दिनों तक वह विवाह का कार्यक्रम होता था। बहुत लंबा wedding. वेरी लॉन्ग वेडिंग। But that is how they did it in those days. तो उस दिनों में इसी प्रकार वे किया करते थे। You understand? आप समझ रहे हैं? So it is in that context Jesus is giving this parable. तो उसी संदर्भ में यीशु इस दृष्टांत को बता रहे हैं। So he says, see these 10 virgins, तो वो कहते हैं कि देखो ये 10 कुंवारियां, they're waiting to be part of the wedding ceremony, the marriage party. और वह विवाह के समारोह को शुरू होने के लिए वह इंतजार कर रहे हैं। They're all ready वे सारे रेडी हैं, तैयार हो चुकी हैं, and they're waiting. और वे इंतजार कर रही हैं। But लेकिन the bridegroom is delayed. दूल्हा थोड़ा देर हो जाता है। That means we don't know exactly what time he's coming. तो इसका मतलब है कि सटीक समय हम नहीं जानते कि वो किस समय आएगा। Some delay has happened. कुछ देरी हो गई है। So then, for 5 of them, they did not bring enough oil. और 5 जो थे उन्होंने अच्छी मात्रा में, काफी मात्रा में तेल अपने साथ नहीं लाया। They were not prepared. वे तैयार नहीं थी। So when it took longer than expected. और जो समय लगना चाहिए था उससे थोड़ा लंबा लग गया। They had to go and buy oil. और उनको जाकर तेल खरीदना पड़ा। And that time, suddenly, और उसी समय अचानक, when they were thinking he won't come, the bridegroom came. और जब उन्होंने सोचा कि वे नहीं आ पाए, अभी नहीं आएंगे, उसी समय दूल्हा आ गया। And only those who were ready, और उसी समय जो तैयार थे, they were able to go into the wedding party. और तभी वे जाने पाए उस विवाह के समारोह में। And the bridegroom went. और जो दूल्हा है उसने विवाह किया, वो मिला उनसे। So the main message is, तो जो मुख्य संदेश यह है कि we must be ready. हमको तैयार रहना है। We must always stay ready. हमको हमेशा तैयार रहना है। And whatever we need जो भी हमको जरूरत है to keep us ready, हमको तैयार रहने के लिए, we need to maintain that in our lives. उसको हमारे जीवन में बनाकर रखना है। Because when we don't know exactly when the Son of Man will come. और हम सटीक रीति से ये नहीं जानते कि कब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। That is the message through this parable. और वही संदेश है इस दृष्टांत के जरिए। Okay? ठीक है। Now, yeah. They are rejected. But those who are in first, they are not coming on time, so they are not getting chance to come.
we have a second chance, but that time we will not get second chance. Yeah. So we have to be this way and looking at the things. I'm ready for the time. Good example. जी, अच्छा उदाहरण है आपका। In the Bible, no second chance. बाइबल में लेकिन कोई दूसरा मौका नहीं है। Only in the Bible college hostel you have 2 chances. बाइबल कॉलेज के हॉस्टल में आपको 2 मौके हैं। Okay. Now, अब what are some things we must not do with this parable? और इस दृष्टांत को लेकर हमको वो क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। You come up with some. आप आइए कुछ बताइए क्या नहीं करना What चाहिए। are some things we must not do क्या क्या वे चीजें जो हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए with this parable? इस दृष्टांत को लेकर, Which Jesus never said. जो यीशु ने कभी नहीं कहा। Which maybe you've heard preachers preach. आपने सुना होगा प्रचारकों ने इसके बारे में प्रचार किया है, But it's not here. लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। What are some things we must not do? तो कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। We cannot wait for the decision comes anytime. That's the thing. No, I'm saying, what are things we must not do when we're interpreting this parable? तो इस दृष्टांत का जब हम अर्थ निकालते हैं तो वे क्या चीजें हैं जो हमको एकदम नहीं करनी चाहिए। जी, we should not be half ready, partial ready. Yeah. So I'm not asking for the meaning. I'm saying when we're interpreting this parable, हम आपसे मतलब नहीं पूछ रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब आप इस दृष्टांत का अर्थ निकाल रहे हैं what are some things we must not do with this story? तो कहानी के साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए Okay, वो पूछ रहे so हैं। you think about it, you drink some chai. आप कुछ चाय Think about पीजिए, it. सोचिए इसके बारे में, After break, we'll continue. और ब्रेक के बाद अब आएंगे और फिर इसको हम लगातार जारी रखेंगे। जी।